Good morning, children. This is class 3 science, and in this video I am starting a new chapter because we have completed chapter number 1 and all the exercises, worksheets, question and answers we have done. So today it is the starting of chapter number 2, that is our body systems. In this chapter we will study about the different systems of our body. Okay, so we will start from the very beginning, from the small part of the system. Then we will go to the actual systems of our body. Okay, in this, through this video you will gain, when you will come to know, you will gain knowledge also about the body system of the human beings. Okay, so you will come to know about many new things through this lesson. All right, you are small children, you have to learn so many things, you have to know many new things, especially in this subject. Okay, so I am starting it from the beginning. Okay, now our body systems, this is the chapter number 2, video number 1 on this chapter. Now, just as a building is made up of bricks, our body is made up of cells. As you know that when a building is constructed, bricks are used. Means you can see in this photo, this wall is made of the bricks. Okay, the laborers have joined the bricks one by one. So through all these bricks, this wall is made or prepared, we can say. In the same way, our body is made up of cells. There are different cells which are joined together, and they form or make our body. We will study about it in a very good manner, we can say, or in a very, we can say कि हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे, starting from the very small part, then we will go to the actual body systems. Okay, cells is the smallest, we can say, organ तो नहीं बोलेंगे इसको, we can say कि smallest particle कह सकते हैं, या बॉडी का एक छोटा पार्ट, सेल. स्मॉलेस्ट सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. सेल जो है वो एकदम स्टार्टिंग छोटा वो है, उसके संग और जुड़ते फिर पूरा बॉडी सिस्टम हमारा बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सेल्स. ठीक है, इट इज़ वेरी माइन्यूट इन साइज. सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. सेल से ही बॉडी की बिल्डिंग होती है. दिस इज़ द स्मॉलेस्ट माइक्रो पार्ट ऑफ आवर बॉडी. These cells join together to form complex organs and organ systems. जब ये सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, तब हमारी बॉडी के और फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स का. ठीक है, नाउ वी विल सी हाउ इट वर्क्स एंड what is the importance of the cells. Then cells are the smallest. As I told you right now, the cells are the smallest functional unit of our body. This is the photograph of a cell. You can see. ये तो बड़ा करके इसमें दिखाया हुआ है, अदरवाइज इन एक्चुअली इट इज़ वेरी स्मॉल. ओके, cells. Then many cells join together to form a tissue. When many cells in many big number are joined together, कई सारे cells जब मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो टिश्यू बन जाता है. ठीक है, वो टिश्यू का फॉर्म ले लेता, फॉर्मेशन टिश्यू का हो जाता है. देन व्हेन मेनी टिश्यूज आर जॉइंड टुगेदर, मैनी टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन. फॉर एग्जांपल किडनी. ओके, यानी दिस इज़ एन एग्जांपल. एक ऑर्गन बन गया जब टिश्यूज़ कई सारे उसमें जॉइंट हो गए, और जब टिश्यूज़ को अलग अलग किया गया तो वो सेल्स छोटे छोटे सेल्स हो गए. In this way, human body is formed. Then many organs join together to form an organ system. और जब कई सारे ऑर्गन एक साथ मिलके एक सिस्टम को बना देते हैं तो वो
एक सिस्टम होता है, हमारी बॉडी के अंदर कई सारे सिस्टम्स हैं, वी विल स्टडी दैम। अभी मैं नाम लेने का इतना, देयर इज़ नो इम्पोर्टेंस टू टेक द नेम्स बिकॉज इफ़ आई विल से यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वी विल स्टडी अबाउट ऑल द सिस्टम्स, कि हमारी बॉडी के अंदर कितने तरह के सिस्टम्स चलते रहते हैं। यू विल कम टू नो फॉर about all of them one by one, okay, with the help of the colored and big pictures you will see in the coming pages, okay. So for example, इन्होंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है बुक में कि एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स ये सिस्टम जो सिस्टम इज शोइंग टेकिंग आउट वेस्ट आउट ऑफ बॉडी, ये सिस्टम यहाँ पे इसकी फोटो दी हुई है, ओके। नाउ वी विल गो टू द right side of the page. This is page number 19, chapter 2, page number 19. Number of organ system join together and function together to form an organism. जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके काम करते हैं, जुड़ जाते हैं और एक साथ काम करते हैं, तो वो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी बॉडी जो है वो भी एक ऑर्गेनिज्म है ना। so many organs are inside our body. Human being, for example दिया हुआ है human being, you can see the photograph of a man here, a human being है ना, एक human being की फ़ोटो यहाँ पे दे रखी है, you understand, ठीक है। I would like to again tell you children कि inside our body, जो बाहर से नहीं दिखता है, there are many functions and many organs which work inside our body and we are never able to see them because they are inside our body, okay, but they all work on a regular basis and moreover they all work and cooperate with each other. Each and every organ needs the help of the other organ, और बहुत कोऑपरेटिव बेसिस पे वो काम करते हैं सब ऑर्गन्स। अगर एक ख़राब हो जाता है, इसीलिए कहते हैं ना, यू मस्ट, अभी तो आप लोग छोटे हो, आपने इतना नहीं सुना होगा कि जैसे किसी की बॉडी में कुछ गड़बड़ी होती है तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कहते हैं उसको। कि अगर जैसे हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है सपोज़, तो वो उसका हार्ट पे अफेक्ट आता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। हार्ट में अगर होगा तो वो ब्रेन में जाएगा, देयर विल बी नो ऑक्सीजन सप्लाई, तो ब्रेन फेलियर हो जाएगा। ब्रेन फेलियर होगा तो और ऑर्गन्स फेलियर होने लगेंगे। In the same way, all the organs, all the systems are related, closely related with each other. अगर एक ऑर्गन मना कर दे कि हम नहीं करेंगे काम, तो या वो फेल हो जाता है, तो दूसरे उसके सिस्टम पे भी, बॉडी के ऑर्गन्स पे देयर इज़ अफेक्ट। ऐसा नहीं है कि एक फेलियर हो गया तो बाकी अपना काम करते चले जा रहे हैं, नो, दे ऑल स्टॉप वर्किंग। दिस इज़ द story of the human beings and this all is done inside our body which we cannot see with our eyes. Only doctors can realize, doctors can tell what is going on inside the body. When a person goes to the hospital, some problem, health problem, then only doctors, because they study, they work, they know each and every minute detail about human body, okay, so then only they do the all sorts of things to save the person, है ना। ओके, तो हम लोग इस तरह से देखेंगे, ये चेन है एक तरह की। सेल्स, स्टार्टिंग सेल है स्मॉलेस्ट, मैनी सेल्स फॉर्म टिश्यूज़, मैनी टिश्यूज़ मेक वन ऑर्गन एंड मैनी ऑर्गन्स मेक ऑर्गन सिस्टम, है ना। ये एक वर्ड है ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम आ जाता है तो ऑर्गेनिज्म हो जाता है, यानी कि वन ह्यूमन बॉडी in which many organs work together, okay. Now here what is written here we will see, there are many organ systems in an organism. Just in simple way I can say that there are many organs and their system, उनके काम करने का तरीका, ठीक है। system means एक set way to work in an organism. Organism means inside the human body, we can say in simple language कि ऑर्गन्स का एक सिस्टम है, एक तरीका है जिसके दे वर्क अकॉर्डिंग टू दैट इनसाइड द ह्यूमन बीइंग्स और इनसाइड ह्यूमन बॉडी।
ऑल दीज ऑर्गन सिस्टम्स वर्क इफ़िशियंटली। यस, दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड यू राइट नाउ कि वो बहुत अच्छे से काम करते हैं इन कोलोब्रेशन विद ईच अदर। कोलोब्रेशन मीन्स एक दूसरे के सहयोग से। कोलोब्रेशन, वो एक दूसरे को कोलोब्रेशन देते हैं, यानी कि सहयोग करते हैं एक दूसरे का, और ऑटोमेटिकली अपना काम और बड़ी इफ़िशियंटली करते रहते हैं, है ना, इनसाइड आवर बॉडी। इसीलिए अगर एक फेल होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे ऑर्गन्स पर भी आने लगता है, एंड द पर्सन इज़ इन द ट्रबल एंड समटाइम्स डाइज ऑल्सो, मर भी जाता है। क्योंकि एक ऑर्गन फेल होता है तो दूसरा फेल हो जाता है, दूसरा फेल होता है तो देन तीसरा होता है, तीसरा होता है तो फिर चौथा होता है। दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। इसी वजह से, बिकॉज दे ऑल ऑर्गन्स आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, सो आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि हम ये जानेंगे कि ये छोटी यूनिट एक है सेल, देन सेल्स आर जॉइन टुगेदर, दे मेक टिश्यूज़। अगर आपसे कोई, इफ़ एनीबडी आस्क यू कि स्मॉल, दिस ए क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, देन यू विल से सेल। आपको पता होना चाहिए कि सेल। देन सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर, दे मेक टिश्यू। व्हेन टिश्यूज आर मेड joined together, they make an organ. Or when some organs are joined together, they make organ system. ठीक है, और every system is different from the other because सबका अपना अपना काम है inside the human body. लेकिन we can say that they are closely related with each other and they work efficiently. efficiently मैंने बड़ी निपुणता से, बड़े अच्छे तरीके से वो काम अपना पूरे अच्छे efficiently मैंने पूरे अच्छे तरीके से वो काम करते हैं। नाउ हियर इज़ ए क्वेश्चन। जब हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, सेल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक क्वेश्चन रेज किया जा रहा है, इज़ इट पॉसिबल दैट एन ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ वन सेल ओनली? क्या ये पॉसिबल है कि जैसे भी हमने पढ़ा कि सेल टिश्यूज़ को बनाते हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन को बनाते हैं, मैनी ऑर्गन्स में एक ऑर्गेनिज्म। लेकिन एक ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सिर्फ वन सेल से बना हो, विच इज़ मेड अप ऑफ वन सेल ओनली? द आंसर इज़ यस। लेकिन वो ह्यूमन बींग्स नहीं है, वो दूसरी चीज़ें हैं जो कि हमको दिखती हैं अपने सराउंडिंग में। दिस इज़ द क्वेश्चन। यस, ऐसा है, बट नॉट इन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, इट इज़ समथिंग एल्स। वी विल सी व्हाट इज़ दैट। यस, मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल। कुछ छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म वो बन जाते हैं जो कि वो एक सेल के होते हैं, उसके अंदर एक सेल होता है, उससे वो बनते हैं छोटे छोटे, लेकिन वो जॉइन नहीं करते आपस में एक दूसरे में, वो वन सेल से ही के अपने आप में एक सेल होता है। दे आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। हम लोग उनको देख नहीं सकते आँखों से, इतने छोटे होते हैं, इसलिए उसके अंदर वन सेल ही होता है। अगर वो सेल कई सारे जुड़ जाएंगे तो वो फिर कुछ भी चीज़ होगी वो बड़ी हो जाएगी ना। तो स्मॉल सेल वन सेल होता है, इसलिए वो एक छोटी सी ही चीज़ होती है जो कि आंखों से नहीं दिखती। एग्जाम्पल दिया है बैक्टीरिया। यस, बैक्टीरिया इज सो स्मॉल कि विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, देन ओनली यू कैन सी बैक्टीरिया। स्पेशली इन मैनी फूड आइटम्स बैक्टीरिया इज़ प्रेजेंट, यू नो। जो खट्टी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कर्ड, आई कैन टेल यू, कर्ड दही जो होती है उसमें बैक्टीरिया होता है ना, उसको जमाया जाता है, वो मीठा मिल्क होता है, वो इट बिकम्स साफ, थोड़ा सा खटास उसमें आ जाती है, एंड बैक्टीरिया इज़ देयर, बट दैट इज़ गुड बैक्टीरिया, दैट डजंट कॉज हार्म टू अस, आवर बॉडी। हम एक बात बता रहे हैं आपको, जैसे माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो यू विल बी एबल टू सी स्मॉल बैक्टीरिया इन दैट ऑल्सो। कर्ड में भी आपको दिखेगा कि बैक्टीरिया विच कैन नॉट सी विद आवर ओपन आइज़ और वी कैन से नेकेड आइज़, यानी अपनी खुली आँखों से हम लोग उसको देखेंगे तो हमें नहीं दिखता, लेकिन बैक्टीरिया इज़ प्रेजेंट इन दैट। बैक्टीरिया मे बी इन मैनी फूड आइटम्स जो कि ख़राब भी हो जाते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया हो जाता है विच वी कैन नॉट सी। कहते हैं ना कि खाना सड़ गया है ना, जैसे कि खाना हमने रखा रहा बाहर गर्मी में पड़ा है या फ्रिज नहीं चल रहा था तो फ्रिज में कई दिन तक पड़ा रह गया, तो ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया कम्स इन दैट, अपने आप वो उसके अंदर
जन्म ले लेता है, अपने आप बन जाता है बैक्टीरिया। अब ये उसकी क्वालिटी है कि उसकी एक मतलब एक फीचर है कि वो खाना सड़ेगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया, या पुराना पड़ गया है तो उसके अंदर बैक्टीरिया बन जाएगा। दैट इज़ हार्मफुल देन वंस द बैक्टीरिया इज़ देयर इन दैट फूड आइटम, सो इट इज़ हार्मफुल टू ईट दैट फूड। कहते हैं ना कि ख़राब खाना खाओगे तो हेल्थ ख़राब हो, सबसे पहले तो स्टमक गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज आपकी बॉडी को वो सूट नहीं करेगा बैक्टीरिया, दैट इज़ बैड बैक्टीरिया। तो वो आप उसको यू कैनॉट ईट इट, ईट तो कर लेंगे, ईटिंग कर लेंगे, बट इट विल नॉट बी डाइजेस्टेड, योर बॉडी विल नॉट टेक इट, अंदर वो अपने नहीं लेगी और उसको ट्राई टू थ्रो इट आउट, है ना, थ्रू वॉमिटिंग सॉर्ट ऑफ थिंग और सम अदर थिंग्स। स्टमक में गड़बड़ी हो सकती है, लूज मोशंस हो जाते हैं कई बार इफ़ यू ईट एनीथिंग विच इज़ फुल ऑफ बैक्टीरिया। गलत चीज़ आपने खा ली तो इस तरह से होता है, वॉमिट होने लगती है, आपका पेट डिसऑर्डर हो जाता है, पेट कहना चाहिए, गड़बड़ी हो जाती है पेट में। एंड द अदर इज़ एमीबा। एमीबा ये दिस इज वन सॉर्ट ऑफ फंगस। ये ऐसा समझ में आता है इसको देखिए कि एमीबा जो है जैसे एक काई जैसे ग्रीन कलर की जम जाती है, फंगस। फॉर एग्जाम्पल ये जो इसमें दिया हुआ फ़ोटो में, ये उसी की फ़ोटो है, आपने देखा होगा कि वो भी बहुत तेज़ मल्टीप्लाई होती है, बहुत तेज़ बढ़ती है, लेकिन वो एक उससे ही स्टार्ट होती है सेल से, और वो देन इट स्प्रेड्स। सो फंगस बहुत सारी चीज़ों में लगती है, आपको मालूम है ना, बहुत से, और बहुत तेज़ी से वो स्प्रेड होती है। सपोज़ जैसे कि कोई वेजिटेबल ही है, कोई जैसे सपोज़ आपने उसको बाहर कई दिन तक रखा हुआ है, इज़ नॉट केप्ट इन द फ्रिज, सो उसके अंदर फंगस बनना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ द थिंग, ओके।